ایک دن ٹنی اور اس کا پتی پیڑ سے سیب اتار رہے تھے۔ اتنے میں ٹنے کو وہاں پیڑ پر چکر آ جاتے ہیں۔ ارے ارے کیا ہوا؟ کیوں اتنے خاموش بیٹھے ہو؟ جلدی جلدی سے سیب اتارو نا، بچے بھی بھوکے ہیں اور بھی کوئی کام کرنا ہے۔ کیا سارا دن آپ پیڑ کے درخت پر ہی بیٹھے رہیں گے؟ ارے ٹنی، میری کوئی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اتنے میں ٹنے سے سیبوں والی باسکٹ نیچے گرتی ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ خود بھی نیچے آ گر جاتا ہے۔ ارے ارے یہ کیا ہوا تمہیں؟ تم کیوں نیچے گر گئے؟ ارے چوٹ تو نہیں لگی؟ ارے ٹنی، میرے سر پہ چوٹ لگ گئی ہے بہت۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ٹنے کی مرتی ہو جاتی ہے۔ ٹنی اور اس کے دو بچے اس دنیا میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ ارے اب میں کیا کروں گی؟ ٹنا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ ارے میں اکیلی بچوں کو کیسے پالوں گی؟ ارے یہ باغ بھی ہم نے کسی کا کرائے پر لیا تھا، اب تو مجھے یہ بھی واپس کرنا ہوگا۔ ارے ٹنا ہمیں کیوں اکیلا چھوڑ کے چلا گیا؟ ٹنوں کی مرتی کے بعد کچھ دن ٹنی اسی طرح گزار دیتی ہے۔ ایک دن وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس مٹھی طوطا آتا ہے۔ ارے تم لوگ کیوں اداس بیٹھے ہو؟ ماما کے پاس سارے پیسے ختم ہو گئے ہیں، اب ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹنی کا چھوٹا بیٹا مٹھو طوطے کو ساری بات بتاتا ہے۔ مٹھو طوطا ٹنی سے کہتا ہے، ارے ٹنی، وہ پاس والے نرسری میں آم کے پیڑ کے درخت ملتے ہیں، تم ایسے کرو اپنے زمین پر لا کر آم کے پیڑ کے درخت لگا لو، کچھ ہی عرصے میں وہ آم دینے لگ جائیں گے اور تم ان کو بیچ کر ایک اچھی زندگی گزار سکتی ہو۔ تمہیں کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلانا پڑے گا، میرے مشورہ مان لو اور تم بڑی خوش رہو گی۔ اور بچوں کے لیے راشن پانی کی بالکل فکر مت کرو، جب تک تمہارے آم کے پیڑ کے ساتھ پھل نہیں لگ جاتا تب تک میں تمہیں سارا رقم دوں گا، تم اپنے بچوں کے لیے راشن لا کر ڈال دو۔ ارے ٹنی، میں تمہارا ایک پڑوسی ہوں اور ٹنے کا اچھا دوست بھی تھا نا۔ یہ کہہ کر مٹھو طوطا اپنے گھر کی طرف چلا جاتا۔ ٹنی مٹھو طوطے کی بات پر عمل کرتے ہوئے شہر سے جا کر وہ آم کے چھوٹے چھوٹے پودے لے آتی ہے۔ ارے میں اب اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں گی، میرے پودے جلدی سے بڑے ہو جائیں۔ پھر ٹنی ان پودوں کو لا کر اپنے کھیت میں لگا دیتی ہے اور ٹنی ان پودوں کا بہت خیال رکھتی ہے۔ یہی میرے معاش کا ذریعہ ہے۔ کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد ٹنی کے آم کے پیڑ بڑے ہو جاتے ہیں، ان پر لال لال رنگ کے آم لگ جاتے ہیں جو بہت میٹھے اور رسیلے ہوتے ہیں۔ ٹنی اپنے آم کو شہر میں جا کر بیچ کر ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن سیٹھ رانا اور اس کا نوکر پنٹو جنگل میں جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں ایک آم کا باغ نظر آتا ہے۔ سیٹھ رانا اپنے نوکر پنٹو سے پوچھتا ہے، ارے پنٹو، تمہیں پتا ہے یہ باغ کس کا ہے؟ ارے جس کا بھی ہے جلدی سے پتہ لگا لو اور یہ باغ اب میں ہی رکھوں گا، اور اس کو کچھ رقم دے دو اور باغ میرے نام کروا لو تم۔ سیٹھ رانا، یہ باغ تو اس ٹنی کا ہے جس کے دو بچے اور اس کے پتی کی مرتی ہو چکی ہے، اس نے یہ باغ بڑی محنت سے لگایا ہے اور اسی باغ سے وہ اپنے گھر کا نظام چلاتی ہے، وہ باغ ہمیں کبھی بھی نہیں دے گی۔ سیٹھ رانا، اگر آپ کہتے ہیں چلو میں پتہ کر لیتا ہوں، لگتا نہیں ہے کہ وہ ہمیں باغ دے گی۔ ارے پنٹو، میں تمہیں 50,000 انعام دوں گا اگر تو ٹنی کو اس کام کے لیے راضی کر لیتا ہے۔ کالو کے دل میں لالچ آ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے سیٹھ رانا، میں کل ٹنی کے گھر چلا جاؤں گا اور اسے راضی کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے پنٹو، کل تم صبح ہی اس کے پاس چلے جانا، یہ کام جلدی سے جلد کر دو، مجھے یہ باغ جلد سے جلد چاہیے۔
टुन्नी और उसके बच्चे आंगन में खेल रहे थे। इतने में वहाँ कालू कौवा आ जाता है और टुन्नी से कहता है, अरे टुन्नी, तुम्हारा बाग सेठ राणा को पसंद आ गया है। वो तुम्हें कुछ पैसे दे रहा है और सेठ राणा पर वो अपना बाग बेच दो। तू कालू कौवे, ये क्या कह रहे हो? मैं अपना बाग कैसे बेच सकती हूँ सेठ राणा पे? ये बाग तो मेरा जरिया ही माश है। मैं अपने बच्चों का पेट पालती हूँ और बाग बेचकर फिर मैं क्या करूँगी? तुम्हें पता तो है ये बाग पर मैंने कितनी मेहनत की है। मैंने दिन रात लगाकर इस मुकाम तक पहुँची हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं अपना बाग सेठ राणा को दे दूँ? ये कभी भी नहीं हो सकता। कालू, तुम सेठ राणा को मना कर दो। मैं अपना बाग किसी सूरत में भी नहीं बेचूंगी। कालू कौवा जब टुन्नी का इनकार सुनता है, अरे ये क्या, ये टुन्नी तो बाग नहीं दे रही। मैं तो 50,000 से हाथ धो बैठा, इसका मतलब है। टुन्नी बातें कर रही थी, लेकिन कालू कौवा तो अपनी 50,000 खोने पर ही सोचों में गुम था। फिर कालू कौवा कहता है, अब मुझे यहाँ से कुछ जाना ही चाहिए, कुछ न कुछ सोचना ही पड़ेगा। कालू कौवा जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोचने लगता है। फिर उसके दिमाग में एक योजना आती है, अरे ये योजना बिल्कुल ठीक है। मैं टुन्नी से झूठे पेपर बनाकर उससे साइन करवा दूंगा और राणा को वो मैं बाग दे दूंगा। अरे यही करूंगा, यही। टुन्नी अपने घर में इन दिनों बहुत ज़्यादा खुश थी। वो अपने बच्चों को रंग बिरंगे खिलौने लाकर देती है। अरे बच्चों, शरारत नहीं करो। अरे तुम क्यों रो रही हो बबली? अरे गुड़िया इसी को दे दो, मैं तुम्हारे लिए एक और गुड़िया ले आऊंगी, रो मत। वो बच्चों को चुप करवाती है और वो अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश थी। इस पार्ट में आप टुन्नी को अपने बच्चों के साथ खुश देख सकते हैं। टुन्नी को नहीं पता था ये खुशी तो उसके लिए कुछ दिनों की है। अरे टुन्नी, जंगल के राजा मेराज ने पक्षियों के लिए ईदी 2,000 देने का फैसला किया है। अरे जो जो इस पेपर पर अपना सिग्नेचर करेगा उसे ही 2,000 ईदी मिलेगी। तुम भी इस पर 2,000 के लिए अपना सिग्नेचर कर लो। ये ड्यूटी राजा मेराज ने मेरी लगाई है। ठीक है, 2 पेपर मैं इस पर साइन कर देती हूँ। फिर टुन्नी उन पेपर पर साइन कर देती है। कालू दिल में बहुत खुश हो रहा था। उस फॉर्म लेकर वहां से चला जाता है। आज मैं अपनी चालाक बुद्धि से काम लिया और मैं लूंगा आपसे राणा से बहुत सारे पैसे। टुन्नी जब शाम को अपने खेत में आती है, वहाँ तो सारे आम उतार कर बोरियों में भरे होते हैं। टुन्नी बेचैनी से ऊपर घूमती है। फिर सेठ राणा से पूछती है, कौन हो तुम लोग? क्यों मेरे बाग के आम उतार रहे हो? अरे टुन्नी, ये बाग तो अब हमारा है। तुमने खुद ही कालू को लिख कर दिया है। पहले तो मैंने तुमसे अच्छे तरीके से मांगा था, तुमने तो दिया नहीं। हमने तो बस कालू ने मुझे लिखवा के दे दिया तुमसे। अब तुम यहाँ से चलती बनो, नहीं तो मैं तुम्हें दूसरे तरीके से यहाँ से भगा सकता हूँ। को बहुत परेशानी होती है और अब वो तो कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि उसने अपने हाथों से लिख कर दे दिया था। अरे इस कालू कौवे को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, टुन्नी दिल ही दिल में कह रही थी और सेठ राणा टुन्नी को बातें सुना रहा था। फिर टुन्नी कहती है, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर टुन्नी उस बाग को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में टुन्नी एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वहाँ मिट्ठू तोता आ जाता है
अरे ये पेड़ के नीचे तो टुन्नी बैठी है, यहाँ बैठी क्या कर रही है? चलो जाकर पूछता हूँ क्यों बैठी है यहाँ इस तरह। अरे टुन्नी, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो पेड़ के नीचे? शाम होने वाली है, क्यों उदास हो? मुझे बताओ क्या हुआ है ऐसा। टुन्नी तोते को सारी बात बताती है और कहती है अब मैं राजा मिराज को भी जाकर नहीं कह सकती, क्योंकि हमारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। और मिट्ठू तोता कहता है अरे टोनी, तुम बिल्कुल फिक्र न करो, मेरे पास मोबाइल है, मैं उस मोबाइल पर जाकर उस कालू की सारी बातें रिकॉर्ड करवा लूँगा, फिर मैं राजा को बताएंगे, फिर वो यकीन कर लेंगे। अरे कालू, आजकल तो आप बाहर भोजन के लिए भी नहीं निकलते, लगता है आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है। आज मैं आपको यही कहने आया था, मुझे भी अपने साथ इस चोरी डकैती के काम में रख लो। आखिरी बार आपने कौन सी डकैती की है जिसका आपको इतना मुनाफा हुआ है? अब तो आप बिल्कुल बाहर नजर ही नहीं आते हो। अरे तुम मिट्ठू तोते, मेरे साथ काम करना चाहते हो तो कल से आ जाना। अरे इस चोरी डकैती में बहुत फायदा है। इस बार मैंने टुन्नी का बाग राणा सेठ के हवाले करवा दिया है और झूठे पेपर बनाकर उस पर टुन्नी का साइन करवा दिया, और मैंने सेठ राणा से 50,000 रुपया लिया है, तभी तो मैं आजकल घर पे आराम कर रहा हूँ। अरे इस तरह लोगों को धोखा देकर उनसे बहुत ज्यादा मुनाफा भी उठाया जा सकता है, बस अपने चालाक बुद्धि से काम लेना पड़ता है। इसी तरह कालू कौवे और मिट्ठू तोते की सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं। मिट्ठू तोता वो मोबाइल लेकर फौरन राजा मिराज के महल पहुंच जाते हैं। अरे कैसे आना हुआ तुम लोगों का महल में? अरे मिराज राजा, टुन्नी का बाग कालू ने सेठ राणा को दे दिया है और झूठ से लिखवा दिया है, ये रिकॉर्डिंग सुने जरा आप। अरे मिट्ठू तोते, मैंने टुन्नी को भी धोखा दिया है और उसका बाग मैंने राणा सेठ को 50,000 में दे दिया है, झूठे पेपर बनाकर टुन्नी का साइन करवा दिया और फिर 60 राणा से मैंने 50,000 रुपया ले लिया, इसीलिए तो मैं घर पे आराम कर रहा हूँ। मंत्री, फौरन जा उस कालू कौवे और सेठ राणा को पकड़कर दरबार में मेरे सामने हाजिर करो। ठीक है मेरा राजा, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ उन दोनों को। फिर में मंत्री कालू कौवे और सेठ राणा को लेकर दरबार में हाजिर हो जाता है और कालू कौवे को उसकी रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। कालू कौवा अपनी रिकॉर्डिंग सुनकर तो बहुत ही हैरान हो जाता है। राजा मेराज ऐसे कहता है मंत्री को, कालू कौवे और साठ राणा को इस जेल में बंद कर दो और इनसे पेपर सा लेकर टुन्नी को दे दो। फिर वो पेपर लेकर टुन्नी को दे। इस तरह कालू कौवे और सेठ राणा को उनकी किए की सजा मिल जाती है। आज की कहानी अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।